Assalamu alaikum everyone. My name is Wasif Ahmed from the discipline of BS Biotech and my roll number is 024. The topic of my presentation is soul and gel. First of all, what is soul? A soul is a colloid made out of very small solid particles in a continuous liquid medium. Artificial soul may be prepared by the process of dispersion or condensation. Example, blood, pigmented ink, cell fluid, etc. So next one is colloid. What is colloid? Colloid is a mixture in which one substance of microscopically dispersed insoluble or soluble particles is suspended throughout another substance. Next one is structure of soul. At the structure of soul, here's the structure of soul. So next one is properties of soul. Properties of soul: particle size from 1 ये nanometer to इस पे 100 nanometer. इसके स्ट्रक्चर पे जरा पूरा कैमरा एक दफा डालो ताकि हमें नजर आ जाए, वो नजर नहीं आ रहा सही तरह। Yes, sir. ओके, Next one is properties of soul. Particle size from 1 nanometer to 100 nanometer. It means particle size is very small. Display Tyndall effect or heterogeneous mixture do not settle or separate over time. So next one is Tyndall effect. Tyndall effect. It was first described 19th century by physicist Tyndall. Tyndall effect is a scattering of light as a light beam passes through a colloid. The amount of scattering depends upon the frequency of light and density of the particles. Like example, shining a flashlight beam into a glass of milk. Next one is what is gel? What is gel? A gel is a solid in which the solid particles are meshed such that a rigid or semi-rigid mixture results. Example, fruit jelly is an example of gel. Types of gel. Next one is types of gel. Organogels, hydrogels, zero gels, elastic gels, and non-elastic gels. First one is organogel. Organogel is a class of gel composed of liquid organic phase within a three-dimensional cross-link network. Next one is hydrogel. Hydrogel is a network of polymer chain that are hydrophilic. These are highly absorbent, like they contain over 90% water. Next one is zero gel. Zero gel is a solid form of gel by drying with unhindered shrinkage. Next one is elastic gel.
Elastic gels are gels which, when heated carefully, when we heated carefully, form a dry mass, and if this dry mass with liquid absorb liquid and swell up and regain their original form. They are called elastic gel or reversible gels. Example: gelatin, fruit jams, etc. Next one is non-elastic. Non-elastic gels are gels which, when on heating, lose liquid and get converted into dry mass, but they cannot regain liquid and do not regain their shape. So, example of the non-elastic gels are silica gel. Next one is properties of gel. First property is swelling. Swelling is a property, the tendency of a gel to take up a large quantity of water or liquid and go on increase in volume is called the swelling. Only elastic gel shows this property. The second property is synersis. The decrease in the volume of a gel due to loss of liquid on standing is called synersis or weakening of gel. The third property of gel is thixotropy. Thixotropy. Some gels turn into a sol on shaking and rest to the gel on standing. This reversible gel sol transformation is called thixotropy. So next one is structure of gel. So here is the structure of gels. Next one is uses of gel. Silica gel is the most valuable absorbing and drying agent, which is used in industry and laboratory. Second is many articles of common use are gels like fruit jam, butter, cheese, shoe polish uses. Sol gel technology can be used to prepare fibers, microspheres, thin films, fine powders. It includes protective coating. The last one is sol gel process. Sol gel is a process for producing solid materials from small molecules. This is used for the fabrication of metal oxide, especially the oxide of silicon and titration. Thank you very much. ठीक है जी, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? कोई नहीं। वासिफ, एक तो आपने जो मटेरियल भेजा था, आपने मुझसे पूछा भी था कि ठीक है ये वो, असल में भी मैंने आपसे करना था फोन, मैंने आपको कल फोन किया, आपका मोबाइल ऑफ था। आपका व्हाट्सएप के अलावा दूसरा भी कोई और नंबर है, मतलब व्हाट्सएप जिस पे करते हो? नो सर, नंबर नहीं है असल में ना, मैं गांव में रहता हूँ तो यहाँ सर्विस की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो दैट्स व्हाई मैं नंबर कल नहीं लेता काफी सर। दफा कॉल किया तो मैं फिर चुप हो गया, फिर आपकी आज थी प्रेजेंटेशन, मैंने आपको गाइड करना था। एक तो ये कि ये टोटल जो थी ना, आपका नहीं है कसूर, वो मटेरियल आपने बताया था कि मिल नहीं रहा, तो इतनी वो आपको यस था सर, मार्क, बहुत लेकिन वो कोई बनाई भी नहीं है आपने। आपको मैंने कोई बुक भेज देनी थी, मुझे नहीं था पता कि आपकी रेडी नहीं है। आपने असल में भेजी 2 दिन पहले, तो मैं यस सर। सैटरडे को, तो अगर आप पहले भेज देते तो मैं आपको दे देता कोई किताब आपको, कि आप मुझे नहीं मिली, क्योंकि लास्ट टाइम आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको तरीका बताया, उसके बाद आपने मुझे फीडबैक नहीं दिया कि आपको नहीं मिला मटेरियल, या कोई इतना अच्छा नहीं मिला, या मटेरियल मुझे रेफर कर देते कि सर ये देख लें, यहाँ से बना लो। तो वरना मैं आपको 1-2 किताबें थी मेरे पास, मैं आपको वो दे देता, उसमें सब काफी अच्छा मटेरियल था। को लेकिन कोई यस सर, नॉट योर फॉल्ट, कोई बात नहीं, हो जाता है।
तो आपसे ओके सर। नेक्स्ट मैं आपको देता हूँ टॉपिक, जो प्रेजेंटेशन एक एक आपकी और होनी है, ओके तो सर। उसमें फिर मैं आपको दूंगा। तो आइंदा कोई भी किसी को मटेरियल ना मिले तो नेक ऑफ टाइम पे मुझे ईमेल ना करे या मुझसे पूछे कि जनाब ये देखें ठीक है, जब एक दिन रह गया हो तो थोड़ा सा टाइम पे बना ले। अब तो खैर आज और कल में सबकी खत्म हो जानी है। तो नेक्स्ट जिसकी भी यस सर। प्रेजेंटेशन हो तो वो आपने अच्छे तरीके से उसको तैयार करना, टाइम पे बनाया करें, बिल्कुल एंड पे आके पेपरों की तरह, जैसे पढ़ना भी एंड पे होता है आपने, इस तरह प्रेजेंटेशन भी आपने एंड पे तैयार करनी है। तो थोड़ा सा इस पे सर मेहनत मैंने करें। कहा था कि मैं असाइनमेंट, जी जी। मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं असाइनमेंट आपको सेंड कर दूंगा, जो भी फॉल्ट होगा तो आप लेकिन आपने फीडबैक वो दे देंगे, इसीलिए किया, मैंने। लेट किया, उसके बाद आपसे मेरा राब्ता नहीं हो पाया ना, मैंने आपको कॉल भी करने की ओके कोशिश सर। की, मैंने आपको बताया कि आपका नंबर ही नहीं मिला। तो मैं सिर्फ यस आपको सर। यही कहना था कि अगर नहीं तो इस, क्योंकि जो था मुझे ये था कि आपको रहने दो, आपसे कहूँ कि कोई और बना लो। अगर आपको मटेरियल का इशू तो मैं आपका टॉपिक चेंज कर दूं, अगर आप मुझे टाइम पे कर देते तो मैं आपका टॉपिक चेंज कर। काफी बच्चों ने टॉपिक चेंज करवाए भी हैं, उनको नहीं मिला तो मैंने उनका यस सर। टॉपिक चेंज कर दिया। तो या उनको मटेरियल दे दिया है या उनका टॉपिक चेंज कर दिया जिनको नहीं मिला। लेकिन ये भी आपकी प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है कि आपने सर्चिंग खुद करनी होती है, और इस वजह से हम आपको टास्क देते हैं। इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। अगर हम हर चीज ही आपको प्रोवाइड कर दें टीचर, तो फिर आपकी ये वाली प्रैक्टिस रह जाती है। मैंने आपको सर्चिंग का पूरा तरीका बताया हर बच्चे को। मटेरियल मेरे यस सर, पास, वो तो मैंने आपको जो टॉपिक दिए हैं इस पे मेरे पास ढेरों मटेरियल पड़ा, लेकिन आप लोगों को सिखाना मकसद है। आप लोगों को कि कैसे एक अननोन चीज जो आपको नहीं पता, आप उसके बारे में मटेरियल कैसे सर्च करेंगे और कैसे उसको एक सिस्टम में सेट करेंगे और कैसे यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। ये आपका यस सर। प्रेजेंटेशन का मकसद सिर्फ बोलना नहीं है कि आपको कैसा अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं। ये भी आपकी प्रेजेंटेशन का ही पार्ट होता है कि आप मटेरियल कैसा तैयार करते हैं, उस मटेरियल की तैयारी के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं असाइनमेंट और दूसरी चीजों में। रीजन क्या थी? एक तो टॉपिक आपका, ये वाले जो टॉपिक्स हैं जो आपके अप्लाइड केमिस्ट्री से अप्लाइड के हैं जितने भी, ये सारे के सारे केमिस्ट्री की एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस का आपको पता चले कि केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं। सिर्फ ये समझ लेना कि ये केमिस्ट्री जस्ट एक बोरिंग और मुश्किल सब्जेक्ट है और हमें मजबूरी में पढ़ाया जा रहा है, इस चीज, इस ट्रॉमा से आपको निकालना मकसद। दूसरा मकसद ये कि आपको सबको कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो जाए। ये एक दो कोर्स, आपने 3 कोर्स पढ़ने हैं तो कम से कम आपको इतनी अवेयरनेस हो जाए कि हमें ये पता चल जाए कि केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत फर्क है कि नहीं। ईशा, आपसे प्रेजेंटेशन लेता हूँ, इसके बाद जब सेशन ऑफ करें फिर आप दे देना। आपने क्वेश्चन करना है तो आप बोल सकते हैं अपना अनम्यूट करके। सर वैसे मैं सुन सर। जी जी। सर मैं कह रहा था कि अगर आप मुझे कोई और टॉपिक दे दो तो मैं उस पर तैयार कर सकता हूँ। इस पे तो नहीं कोई नहीं, मटेरियल अभी भी अभी ये आपकी कोई, मैं आपके इस वजह से नंबर नहीं काटूंगा, आपका मटेरियल नहीं था इतना अच्छा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यस ये सर। कह रहा हूँ कि आप, हमें इस चीज की प्रैक्टिस करवानी होती है और इस चीज को आपने आ, यहाँ पर प्रूफ करना होता है कि आप मटेरियल कैसे ढूंढ रहे हैं एक ऐसी चीज का। मैंने आपकी वो श्योर वाली स्किल इनहेंस करने के लिए ये आपको प्रेजेंटेशन दी होती है। अब अगर मैं आपको प्रॉपर गाइड जरूर करूंगा, मटेरियल जानबूझ के मैं नहीं देता। तो जब बिल्कुल स्टूडेंट के हाथ खड़े हो जाए कि सर मैनू, मैं बिल्कुल बस बेबस हो गया हूं मैं, तो फिर हम या तो उसको मटेरियल दे देंगे, हेल्प आउट कर देंगे, या फिर हम कहेंगे कि अच्छा भाई आप टॉपिक कोई और ले लो। लेकिन ये आपको सिखाना मकसद है, आपका भी पहला दूसरा सेमेस्टर है ये, अगर हम आपको नहीं सिखाएंगे रिसर्च, पीएचडी, एमएस, साइंटिस्ट बनना, उसके लिए आपकी ये स्किल इनहेंस होनी बहुत जरूरी है। और हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने अपने तौर पे करता है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, मटेरियल रेडी कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, विदाउट टीचर की हेल्प के, विदाउट हेल्पिंग मटेरियल के, इंटरनेट से, तो ये आपकी जो स्किल इन्हेंसमेंट है, जर्नल देखना, रिव्यू आर्टिकल देखना, बुक्स सर्चिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और ये अगर आपको आ जाएगा तो आप सारी उम्र के लिए, जितना जब तक आप स्टडी करनी है, आपको कोई भी टेंशन नहीं होने लगी। और इस लेवल पे, अगर बीएस लेवल पे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए कि हम खुद सर्चिंग के चक्कर में पड़ जाएं, तो आप इंशाल्लाह ताला अभी से जब बीएससी करके तैयार होंगे, निकलेंगे, आप चीते चीतियां बन के निकलेंगे। आप इंशाल्लाह ताला जब आगे फर्दर किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या अल्लाह करे उस वक्त तक यहाँ भी एमएस शुरू हो जाए हमारी, तो आप खुद फील करेंगे कि आपका बाकी लोगों से डिफरेंस कितना है। जो लोगों को बातें एमएस लेवल पे जाके पता चलती हैं, आपकी अभी से वो प्रैक्टिस और इन्हेंसमेंट हो रही है, तो आप इस बारे में अपने आप को बर्डनाइज फील ना करेंगे, हमें बर्डन है या टेंशन डल गई है, ये क्या है। तो इस तरह की फीलिंग आपने नहीं लानी।
और कोई भी चीज परेशानी हो जस्ट डिस्कस मी, आप सब मुझसे डिस्कशन करते हैं, मैं सबको रिस्पॉन्स देता हूँ। और अगर किसी का कोई इशू है तो वो मुझसे बता सकता है कि हमें कोई इशू आता है या सर्चिंग से रिलेटेड। तो जी ईशा आप बोलें। जी जी ईशा आपने कुछ कहना है? यस सर, मेरी प्रेजेंटेशन थी। हाँ जी मुझे पता है, इसके बाद आप दे दें, मैं ये सेशन ऑफ करता हूँ, फिर आप दोबारा दे दें। ठीक है।